discussed actually like RMI. So what is RMI? RMI is actually remote method invocation. Okay, so let me just start with the basics. Like let me start with the scratch. RMI in the sense remote method invocation. Okay, so now what is the use of the RMI? It is just used for the distributed. It is just used to develop the distributed system actually. In the sense, अगर मान लो मुझे ऐसा करना था centralized system if you want to develop in the sense मेरे एक कंप्यूटर के अंदर मेरे पास कुछ क्लास है having some functionalities, let I say insert delete update ऐसे database की functionalities मैंने वहाँ पे रखी है. And from another systems like मेरे पास जो terminals थे जो मैंने actually users को दिए हैं मेरे डेवलपर्स को दिए, तो डेवलपर्स को मैं कोड लाइक चेंज करने की परमिशन नहीं देना चाहता. और जस्ट से ओके इफ यू वांट टू ऐड सम डेटा देन जस्ट कॉल द इंसर्ट फंक्शन, एंड इंसर्ट फंक्शन में आप आर्गुमेंट में डेटा दे दीजिए, ऑटोमेटिकली दैट फंक्शन विल इंसर्ट द डेटा इन अ डेटाबेस फॉर यू. If you want to get the data, then just call the select function or display function. It will display the data on your screen. Otherwise, it will return a bunch of data. Now you can store that data and you can just display all this data. So मुझे actually ऐसा कुछ system चाहिए. Let I just once again let me just draw that. So visualization पे कुछ ज़्यादा सही से पता चलेगा. Now consider I have 4 or 5 clients or 4 or 5 students I have or developers I have. So मुझे इन सभी को database के साथ interaction करने के लिए कुछ तो like allow करना था कि like ये मेरा database है. Now all of you can just interact with the database. मतलब आप database में data insert कर सकते हो, delete कर सकते हो, like something like that. CRUD operation you can just perform. So guys, इस बंदे को developer 1 को या first computer first terminal वाले बंदे को insert delete update fire करना है. Second terminal वाले बंदे को भी insert update delete fire करना है. Then इसको भी database के साथ connectivity करनी पड़ेगी. Second बंदे को भी database के साथ connectivity का code लिखना पड़ेगा. So what I am doing, मैं एक centralized computer रख रहा हूँ. This is my centralized system. Having some DB code, okay, तो इसके पास database का connection code है, DB connection code, and it has some insert, delete, display, search, and update functions. Let me do one thing. मैं एक ही computer में ये सब functions बना के एक ही computer में सब function बना लेता हूँ. Now what I will do, like I will just inform all these guys. आप इस computer के साथ connectivity करें, आप इस computer के साथ connectivity करें. And connection कैसे करना है आप लोग को? You have to just do one thing like connection कैसे करना है आप लोग को कि आपको like just इस class का मतलब यहाँ पे हमने code बनाया, that code is in Java, so यहाँ पे जो भी class हमने develop किया, let I say this is my class deep, otherwise that is my class actually, नाम कुछ भी रख सकते हैं. तो इस class का नाम है my class. So what you have to do in all this computer, you have to just access this functions, insert, delete, display, search, update. मुझे ये सब functions ये terminal से access कर. So what I will do, मैं उसके लिए my class का object इन सबको offer करूँगा. Just use the object. What is that obj? Obj is nothing but a my class object. Okay, so all these terminals has to use this object to access the functions. तो जैसे ही वो function को call करेंगे, मान लो ये पहले computer ने फंक्शन को कॉल किया obj.display. So this display function will execute on this machine. Display function यहाँ पे execute होगा, database से data fetch करेगा and वो data वो पहले computer को return करेगा. What are the code? Now second function wants to access actually update function or insert function. इसने function को call किया insert. So insert function will execute on this remote machine. मतलब देखो run भी यहीं पे होने वाला है. वो database के अंदर data insert करेगा और on successful insertion it just say okay now insert मतलब true otherwise false return. तो acknowledgement देगा कि data insert. simple इतना सा काम करना है. मतलब ये सभी terminals पे मुझे function define नहीं करना. सभी terminals पे मुझे function define नहीं करना. function हम कहाँ define करेंगे? in a centralized machine. तो इससे सबसे बड़ा benefit क्या होगा? फर्स्ट बेनिफिट इज कि अगर मुझे कोड चेंज करना हो तो मैं यहाँ पे जब कोड अपडेट करूंगा, कोई भी फंक्शन के अंदर कोडिंग चेंज करूंगा, सभी मशीन में ऑटोमेटिकली चेंजेस आ जाएगा. सेकंड थिंग, ये सभी मशीन पे मुझे हाई कॉन्फ़िगर्ड लाइक मुझे डिप्लॉयमेंट नहीं करना पड़ेगा. मतलब हर एक टर्मिनल मशीन को मुझे हाईली कॉन्फ़िगर्ड नहीं करना पड़ेगा. दैट इज द सेकंड बेनिफिट. थर्ड बेनिफिट लाइक फर्स्ट बेनिफिट इज अपडेशन इजीली हो जाएगा. सेकंड बेनिफिट इज हाईली कॉन्फ़िगर्ड मशीन मुझे नहीं चाहिए. थर्ड बेनिफिट, अगर मुझे कोई लाइसेंस वर्जन सॉफ्टवेयर चाहिए, लाइसेंस वर्जन सॉफ्टवेयर एक्चुअली मैं इसी मशीन पे रखने वाला हूं, बाकी सब मशीन कॉल कर रहा हूं, उसके रिजल्ट के साथ वर्क कर रहा हूं. ओके, मतलब मेरा कोड एग्जीक्यूट कर रहा
दैट्स दैट। सो मुझे एक्चुअली लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। फोर्थ वन इज नेटवर्क का ट्रैफिक काफी कम हो जाएगा, आपको सिर्फ फंक्शन को कॉल करना। बाकी सब जगह क्या होता है, बाकी सब अगर मैं हर एक मशीन के ऊपर फंक्शन, सो काफी सारा डेटा ट्रांसफर, so that makes an issue। एंड काफी सारे बंदे डीबी के साथ कनेक्टिविटी करते हैं। सो डीबी में एक्चुअली मुझे लाइक कुछ एसिंक्रोनाइज के इश्यूज आ सकते थे, डेडलॉक के इश्यूज आ सकते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ चीज है नहीं। सो नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू जनरेट दिस टाइप ऑफ सिस्टम, how to implement this type of system. So answer is RMI or RPC. Answer is either RMI or RPC you can just use. RMI मतलब remote method invocation, RPC in the sense remote procedure call. So if you want to implement this system by using POP concept, POP मतलब procedure oriented programming concept, then guys that thing is known as actually RPC. But if you want to implement the same system by using actually OOPS concept, and that is actually known as RMI. That is actually known as RMI, remote method invocation. Sorry, remote method invocation. That's right. So what we have to do in RMI? So in RMI, you will have actually two main systems. The first thing is actually server. So this is actually known as server. Okay, that is actually known as server. Isko hum server बोलते हैं. So what server will do? Server will implement the class. Server will implement other. Server will have some functionalities, and all these are nothing but clients. ये सब के सब clients हैं. Now in between server and clients, sorry, in between server and client, let us just the client. So in between server and client, you will have one type of registry. In that the server will just put the object, in short, जो भी अपने class बनाया उसका object वो यहाँ पे shareable mode के लिए यहाँ पे put करेगा. Client will access that object from क्लाइंट वहां से वो ऑब्जेक्ट एक्सेस करेगा एंड यूजिंग दैट ऑब्जेक्ट वो सर्वर के इंप्लीमेंटेड फंक्शंस को कॉल करेगा। दैट इज प्रीटी सिंपल। ओके, दैट इज प्रीटी सिंपल। हम लोग को क्या काम काज करना है, सर्वर के पास कुछ क्लास होगा जिसका वो ऑब्जेक्ट बनाएगा, ऑब्जेक्ट बना के आरएमआई रजिस्ट्री के अंदर पुट करेगा। नाउ व्हाट क्लाइंट हैज टू डू, क्लाइंट हैज टू जस्ट एक्सेस दैट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द रजिस्ट्री। रजिस्ट्री इन द सेंस इट्स अ कॉमन मेमोरी, इट्स अ कॉमन मेमोरी। ओके, तो कॉमन मेमोरी में सर्वर को अपना ऑब्जेक्ट लिखना है, क्लाइंट read करना है, and using that object it will simply call the function. That's that. It is pretty simple. But now the question is, सर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, क्लाइंट पे ऑब्जेक्ट बनाने के लिए अगर मैं ऐसा लिखूं my class A is equals to, and ये जो obj लिखा था उसको मैं यहाँ कनेक्ट करूं, मैंने ऐसा लिखा my class A then obj कनेक्ट करूं। So for that purpose पहले तो मेरे पास my class होना चाहिए, क्लाइंट पे my class होना चाहिए, जबकि क्लाइंट पे my class है ही। सो क्लाइंट पे हम लोग क्या देने वाले हैं, वी विल जस्ट प्रोवाइड एन इंटरफेस। हम लोग क्लाइंट पे एक इंटरफेस प्रोवाइड करेंगे। व्हाट इज दैट इंटरफेस? उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फंक्शन डिक्लेयर्ड होंगे, मतलब क्लाइंट को एक मेन्यू मिलेगा, क्लाइंट यू कैन एक्सेस दिस मच ऑफ फंक्शंस। क्लाइंट को कैसे पता हो कौन कौन से फंक्शंस एक्सेस कर सकता है? सो व्हाट वी विल डू, फर्स्टली वी विल जस्ट प्रोवाइड द लिस्ट ऑफ फंक्शंस टू द क्लाइंट। ओके, सो व्हाट वी लाइक व्हाट इज द फाइनल कंक्लूजन इन आरएमआई? अगर आप RMI के थ्रू लाइक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम डेवलप करना चाहते हो, देन फर्स्टली व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? फर्स्टली वी रिक्वायर्ड रिमोट इंटरफेस। ओके, जो क्लाइंट साइड और सर्वर साइड दोनों जगह रहेगा, क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड, वो दोनों साइड रहने वाला है। ओके, क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड। व्हाट इज द सेकंड थिंग? व्हाट इज द सेकंड थिंग? अब हम लोग को सर्वर साइड पे क्या करना है? वी हैव टू डिफाइन अ क्लास जो इस रिमोट इंटरफेस को इंप्लीमेंट करे। We define a class which implements the remote interface. Okay, and that will be on server side. अब तीसरा हम लोग को एक्चुअली सर्वर डिफाइन करना पड़ेगा, डिफाइन सर्वर, जिसके अंदर हम क्या करेंगे? What is the responsibility of that server? Right, like define the class object in registry. What is that registry? It's a common memory. This is actually a registry. This is actually a registry. Okay, the server का responsibility इस class का object यहाँ पे लिखना है. So before that, we have to just start the registry. Launch the registry. ये भाई सब वहाँ पे लिख देंगे. Now what is the task of the client? Now finally we have to define the client. Read object from registry and access a particular method. Okay, that is the इतना हम लोग को काम करना है. So first step क्या है हमारा guys?
हम लोग को एक्चुअली रिमोट इंटरफेस स्टेप होता है। मैं ये रिपीट इसलिए करा रहा हूँ, लास्ट सेशन में हम लोग कर चुके थे, बिकॉज ये एक प्रोग्राम पूछा जाएगा, अगर तो 7 मार्क्स इसके लिए फाइनली। So what we have to do? What is the first step? First step is define the remote interface. तो remote interface के लिए आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना है? Define an interface. Define an interface. तो मुझे कोई हेल्प करेगा इंटरफेस कैसे बनाया जाता है? Yes? Anyone? इंटरफेस माय इंटरफेस જે નામ આપવાનું હોય. Fine. Interface and कुछ भी like let I just say add interface. Okay. Now interface के अंदर guys आपको कुछ ना कुछ जो यहाँ पे आपको जो भी फंक्शंस क्लाइंट साइड से एक्सेस करवाने हैं, because this interface is just used to like display a bulk of functions जो क्लाइंट साइड पे एक्सेस होंगे और सर्वर उसको इंप्लीमेंट करेगा। मतलब सर्वर को जबरदस्ती बोलना है कि तुझे इंप्लीमेंट करने ही, तो फंक्शन इसके अंदर लिखो, डिफाइन एन इंटरफेस। एंड सेकंड थिंग, इसको रिमोटली एक्सेस करना है, मतलब इस इंटरफेस का ऑब्जेक्ट रजिस्ट्री में लिखने की परमिशन है, इस इंटरफेस के ऑब्जेक्ट को रजिस्ट्री में लिखने की परमिशन है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक्सटेंड दिस इंटरफेस फ्रॉम java.rmi.remote_interface। सो उसके लिए क्या करें? एक्सटेंड्स एंड जस्ट राइट डाउन दिस, एंड टू सपोर्ट दिस रिपोर्ट आपको सिंपल यहाँ पे ऊपर लिखना है लाइक java.rmi.remote और .star, that's up to you, choice is yours. Okay, now third step is declare functions in interface। जो कौन से functions होंगे? which client can access and server has to define। ओके, सो मुझे एक सिंपल सा फंक्शन चाहिए था कि लाइक मैं 2 नंबर दूं, उसका एडिशन करके मुझे वापस दे। सो इंटीजर ऐड एंड 2 नंबर उस फंक्शन में आर्गुमेंट में पास होंगे, दैट्स दैट। बट गाइस बी केयरफुल, ये फंक्शन के पीछे रिमोट एक्सेप्शन लिखना मैंडेटरी। नाउ व्हाई दैट इज रिक्वायर्ड, सो हम लोग 2-5 मिनट में इसको डिस्कस करते हैं। सो वी हैव टू डिफाइन द फंक्शन एंड कंपलसरी आपको उस फंक्शन के पीछे रिमोट एक्सेप्शन लिखना है। So declare the functions in interface which client can access and server has to define with remote exception. Okay, so that is the third step. So that's my first step. Let I just put the dash over there. That is the second step, and this is the third step. So that is the thing. इस तरीके से मुझे कुछ टास्क चाहिए। ये अपना हुआ रिमोट इंटरफेस की कहानी। Now ये रिमोट एक्सेप्शन को भी सपोर्ट करने के लिए पैकेज की जरूरत पड़ेगी। So that is actually java.rmi.remote_exception. Either you can just put the star, तो 2 बार इनपुट लिखने की जरूरत नहीं है, or individually you can just import the package. So that's that is my first. Okay, so let me just do one thing. इसको मैं कॉपी कर देते हैं एंड यहाँ पेस्ट करने के बाद सेव कर देते एक बार। So now यहाँ पे मैं लिख देता हूँ RMI day 2, उसके अंदर हम इसको सेव कर देंगे एंड इसका नाम मैं रख देता हूँ ऐड इंटरफेस टू जावा। इट इज नॉट मैंडेटरी क्लास का नाम या इंटरफेस का नाम और लाइक अपने फाइल का नाम सेव रखिए, but that's that, still मैंने सेम रखा है। now let I just compile that, so it's successfully compiled। so now यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, in short my first step is done। okay, मेरा first step complete हुआ। now what is the second step? define a class which implements the remote interface। so now the second step is define a class on a server side, so that will be on a server side। so मुझे हेल्प करेंगे गाइस, क्या करना चाहिए सबसे पहले? यस, एनीवन? सर्वर नो क्लास बनावવાનો। क्लास का नाम क्या लिखे? माय सर्वर नहीं, सर्वर अलग क्लास हुआ ना, माय सर्वर माय क्लास गમે એ बनाओ। मैंने ऐड क्लास लिख दिया। फाइन, नहीं इंप्लीमेंट करे माय इंटरफेस ने। फाइन, इंप्लीमेंट्स माय, अदरवाइज अपने इंटरफेस का नाम था ऐड इंटरफेस। फाइन, अपने इंटरफेस का नाम था ऐड इंटरफेस। अब गाइस अगर आपने इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया, दैट मींस व्हाट? सो यहाँ पे स्टेप लिख देते हैं। so define a java class, second step is implements from add interface, that is the second step। अब अगर आपने इंटरफेस से इसको इंप्लीमेंट किया, दैट मींस आपको कंपलसरी उसके सभी फंक्शन को ओवरराइड करना पड़ेगा। सो लेट आई जस्ट कॉपी दिस फंक्शन एंड मैं यहाँ पे इसको ओवरराइड कर देता हूँ। ओवरराइड इन द सेंस उसकी डेफिनेशन आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो मैंने रिटर्न a+b कर दिया, बट बी केयरफुल, इंटरफेस के सभी फंक्शंस बाय डिफॉल्ट पब्लिक एंड एक्सट्रैक्ट होते हैं।
मैं आपको बताता हूँ। लाइक मैंने यहाँ पे लिखा जावा पी। जावा पी मतलब मुझे चेक करना था कि मेरे इंटरफेस में क्या है। ओके, हर एक टाइम भूल जाता हूँ, पाथ सेट करना ही पड़ रहा है सिस्टम में। एक जस्ट मोमेंट गाइस। ओके फाइन गाइस, सो लाइक व्हाट इज द सेकंड स्टेप? जस्ट अ मोमेंट, मैं पाथ सेट कर लेता हूँ पहले यहाँ पे। नाउ लेट मी जस्ट अप्लाई जावा पी एड इंटरफेस। सो व्हाट वी हैव, हमने क्या डिफाइन किया था? हमने सिर्फ लिखा था इंटरफेस, एड इंटरफेस, एंड हमारा इंटरफेस एक्चुअली रिमोट इंटरफेस से इनहेरिट किया था। सो गाइस हमने सिर्फ इतना ही लिखा, इंटीजर एड इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी। लेट आई जस्ट ओपन दिस आल्सो, जस्ट कंपेयर बोथ दिस। ओके, ये हमारा इंटरफेस रहा। सो हमने क्या लिखा हुआ है? वी जस्ट राइट डाउन इंटीजर एड इंटीजर a comma b throws remote exception. What about this public and abstract? So by default इंटरफेस के सभी मेथड्स, इंटरफेस के सभी मेथड्स बाय डिफॉल्ट पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। सभी मेथड बाय डिफॉल्ट पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। सो देयर इज नो नीड टू राइट डाउन पब्लिक ओनली। ओके, आप पब्लिक लिखो चाहे ना लिखो, इट विल वर्क। जैसे मैं पब्लिक लिख के भी इसको कंपाइल करूं एंड देन आफ्टर जावा पी फायर करूं, सो सेम आउटपुट विल बी। So that's not a big deal, like a public लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। Okay, but now whenever you will try to implement that, जब आप उसको override करने की ट्राई करो, at that time public is mandatory. Okay, public वाला मेथड पब्लिक में ही override होता है, that is mandatory. So implements add interface, क्या स्टेप था हमारा? Define a class. So हमने क्लास को डिफाइन किया। Implements that class from your declared or defined interface. Third step is उसके जितने भी मेथड है, जितने भी मेथड्स उन सबको ओवरराइड करें। सो ओवरराइड all methods of interface with public visibility. That is the next step. Okay, with public visibility. So I hope यहाँ तक clear है। So let me just do one thing, हम एक क्लास बना देते हैं and let I just import remote exception और इसको सेव कर देते हैं add class to java. Let me try to compile this. Okay, so java c add class to java. So it's successfully compiled. Now let me check java p and add class के भाई हमने सब कुछ सही से किया है। So that works fine. So we know कि by default एक default constructor हमारे पास होता ही है। Okay, by default हर एक class में default constructor होता है। But that's fine, हमने हमारा एक function override किया, that is the thing. So up to this there is no problem. So हमने एक class define किया, उसको interface से implement किया, उसके अंदर जितने भी methods थे सभी methods को हमने override किया, that's that. Now another step is छोटा सा काम करना है कि अब ये जो क्लास है, जैसे हमने पेंट ब्रश में कुछ ड्रॉ किया था, ये जो माई क्लास है इसका ऑब्जेक्ट सर्वर आरएमआई रजिस्ट्री के अंदर पुट करेगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये क्लास के अंदर कुछ फंक्शंस है, ओके, जो क्लाइंट को एक्सेस करने हैं। इस क्लास के अंदर जो फंक्शंस है वो क्लाइंट को एक्सेस करना है। दैट मींस क्लाइंट के पास कौन सा ऑब्जेक्ट होना चाहिए? बट ऑफ दिस माई क्लास का। तो सर्वर का रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा? सर्वर माई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा, उस ऑब्जेक्ट को आरएमआई रजिस्ट्री के अंदर लिखेगा। दैट इज द थिंग, सर्वर माई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा और उस ऑब्जेक्ट को सर्वर आरएमआई रजिस्ट्री, दैट इज आरएमआई रजिस्ट्री, दैट मींस द कॉमन मेमोरी, उसके अंदर पुट करेगा। बट गाइस जब ये सर्वर जब ये ऑब्जेक्ट नेटवर्क के थ्रू एक मशीन से दूसरे मशीन से तीसरे मशीन में मूव करेगा, जैसे ये सर्वर इन द सेंस इट्स माय फर्स्ट कंप्यूटर, वहां से सेकंड कंप्यूटर पे गया, थर्ड कंप्यूटर इन द सेंस क्लाइंट के टर्मिनल्स पे जा रहा है, एट दैट टाइम वी नीड टू अलाउ हिम, उसको बाहर जाने की परमिशन होनी चाहिए। ओके, एंड वो परमिशन देने के लिए आपको एक और काम करना है, लाइक extends your class, extend class from unicast remote object, extend your class from unicast remote object. Now what is that unicast remote object? That's a predefined class. Okay, और इस क्लास को परमिशन है, इस क्लास को what is JVM, that is Java Virtual Machine. So इस क्लास को परमिशन है नेटवर्क में हर एक जगह मूवमेंट करने। बट व्हाट इज माय रिक्वायरमेंट? मुझे तो अपने क्लास की परमिशन चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूं, मुझे अपने क्लास की परमिशन चाहिए, अपने क्लास के ऑब्जेक्ट को परमिशन देनी थी
कि भाई तू मूव कर, आपके पास जैसे मान लो लॉकडाउन चल रहा है, बट पुलिस ऑफिसर्स एंड एसएमसी गाइज हैविंग द परमिशन, डॉक्टर्स हैविंग द परमिशन, ओके, टू मूव अराउंड द सूरत। रिक्वायरमेंट, मुझे एक्चुअली ऐसा कुछ करना था कि एक कॉमन बंदा है, वन कॉमन मैन इज देयर, एंड मुझे उस बंदे को परमिशन देनी थी, तो हम क्या बोलेंगे, आइदर दैट गाय हैज टू उनकी वैन में या उनकी जीप में या उनकी बाइक में बैठ के जाए, otherwise that guy has to go with doctors, otherwise SMC guys, otherwise उनसे वो पास का कॉपी पेस्ट करा लो, उनसे परमिशन कॉपी उनसे लिखवा लो कि इस बंदे को भी परमिशन। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। सो फॉर दैट व्हाट आई विल डू, परमिशन है किसको सर, यूनिकास्ट रिमोट ऑब्जेक्ट, परमिशन देनी किसको है, ऐड क्लास को। डू वन थिंग, just write down extends and unicast remote object, so your class also will have a permission, आपके क्लास को भी परमिशन। So for that what I will do, मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, I have to write down extends unicast remote object, that's that. But now this class is from java.rmi.server dot then this is the package actually, ये class java.rmi.server के अंदर define, that's that. Our task is done. So now let me check, and guys can you please tell me, अगर मान लो मेरे पास इस तरीके से कुछ कंस्ट्रक्टर्स बने हुए, कंस्ट्रक्टर आई होप समझ में आ रहा है, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, कैन यू प्लीज टेल मी, यस एनीवन, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर? कंस्ट्रक्टर क्या है गाइस? कौशिक, आलम सर, कुछ भी पता हो, जिस जो भी आपको पता हो गाइस। કન્સ્ટ્રક્ટર માં સર છે ને જે ક્લાસ નું નામ હોય ને हाँ, એ નામથી જ તે કન્સ્ટ્રક્ટર બનાવી શકાય। फाइन, क्लास नेम एंड फंक्शन नेम मस्ट बी सेम, दैट इज एक्चुअली कंस्ट्रक्टर, है ना, क्लास नेम एंड फंक्शन नेम मस्ट बी सेम, दैट इज एक्चुअली नोन एज कंस्ट्रक्टर। सो गाइस यहाँ मेरे पास दो कंस्ट्रक्टर, फर्स्ट के अंदर फर्स्ट का कंस्ट्रक्टर, सेकंड के अंदर सेकंड का कंस्ट्रक्टर। मैंने सेकंड का ऑब्जेक्ट बनाया, और कंस्ट्रक्टर के पास एक गॉड गिफ्ट है, गॉड गिफ्ट तो नहीं बोल सकते, जावा का गिफ्ट। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाओगे कंस्ट्रक्टर विल रन ऑटोमेटिक, जैसे आप ऑब्जेक्ट बनाओगे कंस्ट्रक्टर अपने आप रन हो जाएगा। सो यहाँ आउटपुट क्या आएगा इस प्रोग्राम का, एनीवन? यस मिहिर, बी मस्ट बी द आउटपुट, चेक करें, जावा सी टेस्ट, ओके नाउ इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, थोड़ा जावा की जगह जाव लिख दिया था मैंने, that's it, that's done. So B is output, okay, B is output. But now अगर मैं यहाँ फर्स्ट का ऑब्जेक्ट बनाता तो yes, बाकी सब भी पार्टिसिपेट, તો એ ए आना चाहिए, बाकी सब भी पार्टिसिपेट कर सकते हो गाइस, दैट इज इजी। सो नाउ द आउटकम इज ए, ओके। बट मान लो मैंने यहाँ पे कुछ इनहेरिटेंस का कंसेप्ट किया हुआ है, मतलब आई जस्ट इनहेरिट अ सेकंड क्लास फ्रॉम फर्स्ट क्लास, नाउ व्हाट विल बी द आउटकम? जस्ट अ मोमेंट, दैट्स इट, ओके, व्हाट विल बी द आउटकम? मैंने फर्स्ट का ऑब्जेक्ट बनाया, सेकंड इज कमेंट, इनहेरिटेंस आई होप आप लोग को पता है, आई यूज्ड एक्सटेंस कीवर्ड to inherit second class from the first class. Yes, Kapsu? यस सर। Yes, Siv, Fakre Alam, Pinal, Abhishek, Mohit, what is the outcome? मैंने फर्स्ट का ए ने बी सर બંને આવશે। सर फर्स्ट का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने सर, પણ તમે एक्सटेंड કરેલો છે ને એટલે। Fine, okay, your answer is actually A and B both. Yes, Abhishek, Mohit, और कोई आंसर दे रहा था आई थिंक, सर ए आएगा सर। फाइन, आंसर इज ए गाइस, आंसर इज ए, बिकॉज हमने सिर्फ फर्स्ट का ऑब्जेक्ट बनाया, सुपर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था हम लोगों ने, ओके। बट अगर मैं चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं लाइक एंड मैं चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूं, व्हाट इज द आउटकम? बी, बी, और कोई? यस यस कौशिक, सर હવે તો એ ને બી આવશે। बी आएगा, बी, ए एंड बी दोनों आएंगे, ओके। सॉरी, मैंने एक्चुअली प्रोग्राम गलत रन किया, ओके। कंस्ट्रक्टर 1 इज देयर, नाउ लेट मी रन दिस ए एंड बी बोथ। व्हाई ए एंड बी बोथ? बिकॉज देखो हमने चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर यूज किया, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, और चाइल्ड क्लास में एक चीज लिखी होती है दैट इज सुपर,
बाय डिफॉल्ट वो पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर पे लेके जाता है कंट्रोल। तो आप लिखो चाहे ना लिखो, ये होता ही है। जैसे मैं अभी लिख देता हूँ तो भी आउटपुट सेम ही आएगा। जस्ट चेक दिस, मैंने टेस्ट अंडरस्कोर कंस्ट्रक्टर वन डॉट जावा को कंपाइल किया, आफ्टर दैट मैंने प्रोग्राम को रन किया, सो आई गॉट ए एंड बी पोर्ट। सो वो दोनों चीज आएगी ही आएगी। चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर में सुपर लिखा ही होता है, आप लिखो चाहे ना लिखो, दैट इज ऑलवेज देयर, दैट इज ऑलवेज देयर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। फाइन। सो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सो हम लोग को यूनिकास्ट को समझने में थोड़ा हेल्प मिले। सो नाउ गाइस, अगर मान लो मेरे पास दो कंस्ट्रक्टर है, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर था। सो मैंने यहाँ पे लिखा पैरामीटराइज्ड इन द सेंस कंस्ट्रक्टर विद सम आर्गुमेंट। सो पैरा ए, लेट आई जस्ट राइट डाउन डिफॉल्ट ए। नाउ व्हाट इज द एक्सपेक्टेड आउटपुट, में यहाँ सुपर नहीं लिखा, एंड मैं चाइल्ड क्लास का सॉरी पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना। एनीवन? ओनली पेरेंट क्लास નો આઉટપુટ આવશે। What is the output? Default A या पैरा A या दोनों? स्नेह, ખાલી कमिशा, ઓનલી એ જ આવશે, પેરામીટર તો આપેલું Def નથી। डिफॉल्ट A, like अमित, मित, स्नेह, गाइस पार्टिसिपेट कर सकते हैं आप लोग। सो आप लोग का कहना है कि यहाँ पे डिफॉल्ट A आना चाहिए। सो लेट आई जस्ट कंपाइल दिस प्रोग्राम and let me run. So here the output is actually default A. That's it, you are right. Okay, so now अगर मैं child class का ऑब्जेक्ट बनाऊं तो मैंने सेकंड का ऑब्जेक्ट बनाया, તો ઓ પેરામીટર વાળું નહીં આવે, પણ ઉપરના ડિફોલ્ટ અને બી આવશે બંને। डिफॉल्ट A and B। क्यों पैरामीटराइज नहीं आएगा? કારણ કે આર્ગ્યુમેન્ટ જ નથી આપેલી, આ પેરામીટર તો આપેલો નથી કન્સ્ટ્રક્ટર ની નીચે આપણે let I- જ્યારે ઓબ્જેક્ટ કોલ કરાવે। मैं यहाँ से 10 दे रहा हूँ, चलो अभी। અભી આएगा, तीनों आए, तीन આવશે, ત્રણ। Okay, anything else guys? No, sir. आप मतलब बाकी सबको भी सबमिट तो करना पड़ेगा ना आंसर। कौशिक एक ही बातचीत कर रहा है। यस आलम सर, स्नेह सर। ओके गाइस, देखो मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या लिखा होता है? सुपर। अब आपके पास Super. डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है या पैरामीटर, डजंट मैटर। आप चाइल्ड क्लास में देखो, अभी मैं पहले डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लेता हूँ। लेट मी डू वन थिंग, हम यहाँ पे दोनों बना देते हैं। ओके, यहाँ पे हम दोनों बना देते हैं। अब यहाँ आर एज ए फर्स्ट स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं लिख रहा, मैं एज ए फर्स्ट स्टेटमेंट कुछ भी नहीं लिख रहा, और यहाँ पे हम मैसेज चेंज कर देते हैं, दैट इज डिफॉल्ट बी, एंड लेट आई जस्ट राइट डाउन पैरामीटराइज्ड। ओके, अब मैं यहाँ से सेकंड का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। सो हमने आर्ग्यूमेंट पास की? नो, वी डिडंट पास एनी। यहाँ से कंट्रोल कौन सी लाइन में जाएगा? सेकंड के कंस्ट्रक्टर में जाएगा, दैट्स फाइन, बट सेकंड में दो कंस्ट्रक्टर है, डिफॉल्ट एंड पैरामीटर्स। जाएगा कहाँ पे? डिफॉल्ट पे या पैरामीटराइज्ड पे? Default. डिफॉल्ट पे पहुंचे, मतलब लाइन नंबर 14। लाइन नंबर 14 के बाद सबसे पहला स्टेटमेंट उसमें क्या होगा सर? सुपर। सुपर मतलब ऊपर, तो जाएगा भाई सीधा ऊपर, मतलब पैरामीटराइज के कंस्ट्रक्टर के पास। पैरामीटराइज के पास भी दो चीजें, सॉरी पेरेंट क्लास के पास भी दो कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट एंड पैरामीटराइज्ड। उसमें से कहां जाएगा? એમાં પણ Default. डिफॉल्ट, बिकॉज हमने यहाँ कुछ भी लिखा, हमने कुछ नहीं लिखा, दैट मीन्स कंप्यूटर डिफॉल्ट के साथ उसको एक्सेस करेगा। ओके, सो यहाँ से कंट्रोल ऊपर गया, दैट मीन्स डिफॉल्ट है। कंस्ट्रक्टर कंप्लीट, तो हम वापस लाइन नंबर 16 के एंड में आ जाएंगे, मतलब लाइन नंबर 16 इज डन। जो हमने नहीं लिखी थी हमारे हिसाब से वो कमेंटेड है। देन आफ्टर लाइन नंबर 17 एग्जीक्यूट होगा, दैट इज डिफॉल्ट बी, दैट्स इट। तो लाइन नंबर 30 में डिफॉल्ट ए एंड डिफॉल्ट बी आना चाहिए। सो लेट आई जस्ट कंपाइल दिस प्रोग्राम वंस अगेन, दैट इज 2, दैट्स इट। तो डिफॉल्ट ए एंड डिफॉल्ट, फाइन। सो आई होप दैट इज क्लियर गाइस। किसी को कोई डाउट है? नो सर। नाउ गाइस, मैं यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बना देता हूँ सेकंड का ही, जिसमें वन आर्गुमेंट पास। सो ये लाइन नंबर 30 का आउटपुट मुझे पता था डिफॉल्ट ए डिफॉल्ट, तो उसको मैं कमेंट नहीं कर रहा, मतलब उतना तो आएगा ही आएगा, डिफॉल्ट ए डिफॉल्ट बी। व्हाट अबाउट दिस वन? अब H2, यस यस, ઓલ આઉટપુટ આવશે સર। 4 लाइन आएगी ऐसा? यस सर। मतलब इसके 2 लाइन तो आने Yes. थे, इसके 2 लाइन आने थे, 4 लाइन आप इसके बोल रहे हो। ओके, लेट आई कमेंट दिस। तो मतलब इसके 4 लाइन आएंगे। यस सर। एक बार समझते हैं, चलो। तो सबसे पहले हमने सेकंड का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया,
पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर या डिफॉल्ट है, कौन सा कॉल कर ले गाइस? पैरामीटर पैरामीटराइज मतलब कौन से लाइन में जाएगा ये? कंट्रोल विल बी फॉरवर्डेड टू लाइन नंबर 19। 19 19 पे पहुंचे, 19 के अंदर पहला स्टेटमेंट क्या लिखा होगा? सुपर सुपर में आर्गुमेंट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा तो कहां जाएंगे? सुपर के डिफॉल्ट के पास, पेरेंट पेरेंट के डिफॉल्ट के पास, मतलब मैसेज आएगा डिफॉल्ट ए, मैसेज आएगा डिफॉल्ट ए। अब वो लाइन नंबर 6 तक अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, लाइन नंबर 6 इन द सेंस फर्स्ट का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कंप्लीट। अब कंट्रोल वापस आएगा, आपका लाइन नंबर 21 इज ओवर, सो लाइन नंबर 22 मतलब आउटपुट आएगा पैरामीटराइज्ड बी, पैरामीटराइज्ड बी। अब उसका भी ब्रैकेट कंप्लीट, मतलब कंस्ट्रक्टर इज ओवर, दैट मींस लाइन नंबर 31 इज ओवर। सो अपने टेक्निकली देखे तो आंसर आना चाहिए डिफॉल्ट ए पैरा बी। इज इट फाइन? गाइस डिफॉल्ट ए पैरामीटराइज बी। कौशिक आप Yes, 4 sir. लाइन बोल रहे थे, बट यहाँ पे 2 ही लाइन आएगी। फाइन। यस सर। बट अगर मान लो मुझे पैरामीटराइज कॉल करवाना ही है, तो मैं यहाँ सुपर लिखूंगा विद सम आर्गुमेंट। सो अब जब लाइन नंबर 31 पे जाओ, वहां से कंट्रोल जाएगा लाइन नंबर 19 में, बिकॉज हमने सेकंड का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज किया। सो लाइन नंबर 19 के बाद एज ए फर्स्ट स्टेटमेंट मैंने सुपर लिखा है, तो अब कंप्यूटर का सुपर नहीं आएगा जब मैंने लिखा है। अब मैंने सुपर के अंदर कुछ डेटा पास किया, तो वो सीधा जाएगा अपने पेरेंट के पास, अब चूज करेगा, इट विल जस्ट लाइक सिलेक्ट वन कंस्ट्रक्टर। ओए कौन सा कंस्ट्रक्टर चाहिए? रिक्वायरमेंट इज आई जस्ट आस्क फॉर पैरामीटराइज्ड, लाइक वहां पैरामीटराइज्ड है, यस, देन लाइन नंबर 7 पे कंट्रोल जाएगा, it will run parameterized A. Now after that, after the line number 10, like 21st number की line का execution complete, it will just print para B. Second constructor is over, that's that. So let me compile and run. So para A, para B. So that's that. So in short, by default constructor call होता है। अगर हम call नहीं करना चाहे तो भी default constructor। Okay, अगर आप call नहीं करना चाहते, still default constructor is simple. इसको थोड़ा कंक्लूड करके रखते हैं, साइड में रखते हैं। नाउ अनदर थिंग इज कंसीडर आई हैव अ क्लास एंड हैविंग ए वॉइड डिस्प्ले फंक्शन, और ये वॉइड डिस्प्ले फंक्शन में एक्सेप्शन थ्रो करने का पहले से बोला कि भाई ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा। मतलब एक्सेप्शन देखो 2 तरीके से हैंडल होते हैं, या तो आप थ्रो कर दो, या तो आप थ्रो कर दो। मैं हैंडल नहीं करना चाहता, तो मैं जब डिस्प्ले बना रहा था तब मैंने बोल दिया आई डू नॉट वांट टू हैंडल, मेरे कोई इंटरेस्ट नहीं एक्सेप्शन हैंडल करने में, सो वो विल हैंडल दिस। तो जो इसको कॉल करेगा, जो भी बंदा इस फंक्शन को, डिस्प्ले नाम के फंक्शन को एक्सेस करेगा, वो भाई साहब उसको हैंडल करेंगे, वो भाई साहब उसको हैंडल करेंगे। सो अगर मान लो मैंने फर्स्ट का ऑब्जेक्ट बनाया और मैं उसके थ्रू डिस्प्ले को कॉल कर, ठीक है। सो नाउ ex1.java, मैंने सिंपल इतना सा काम किया, मैंने फर्स्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो उसके थ्रू मैं डिस्प्ले को एक्सेस कर रहा हूं, दैट्स दैट। नाउ लेट मी जस्ट ट्राई, 1 मिनट, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, फाइन, ओके। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ex1.java, it will just generate a compile time error on line number 13. What is the line number 13? Line number 13 just says f.display. हमने तो f.display को सिर्फ कॉल किया है एंड वो परमिशन थी, बट गाइस f.display इन शॉर्ट डिस्प्ले फंक्शन, वो पहले से क्या दे रहा है? एक्सेप्शन। देन यू आर रिस्पांसिबल टू हैंडल दैट एक्सेप्शन। तो आपको ये हैंडल करना पड़ेगा। सो मुझे इसको हैंडल कैसे करना है? आई हैव टू राइट डाउन ट्राई एंड कैच, दैट इज द फर्स्ट चॉइस, दैट इज योर फर्स्ट चॉइस कि आप या तो यहाँ पे ट्राई कैच लिख दीजिए, भले खाली छोड़े, बट यू आर रिस्पांसिबल। दैट आई कंपाइल, oh now that's fine, it's working, that is the first choice. Otherwise second choice is मैं हैंडल नहीं करना चाहता, मैं खुद यहां पे भी हैंडल नहीं करना चाहता, तो अब एक्सेप्शन कौन से फंक्शन में आ रहा है? डिस्प्ले ने तो वहां से कैरी फॉरवर्ड कर दिया, अब कौन से फंक्शन में एक्सेप्शन आएगा? सर इस लाइन में। ये लाइन कौन से फंक्शन के अंदर? मेन के अंदर। सो नाउ मेन एक्सेप्शन थ्रो करना है, तो मैं यहां से भी डिक्लेयर कर देता हूं भाई मेन हैंडल नहीं कर रहा, दैट मींस अब कौन हैंडल करेगा? मेन को कौन कॉल करेगा? जावा, देन जावा विल हैंडल, ठीक है। सो नाउ लेट मी कंपाइल दिस,
लेट मी रन. सो दैट्स दैट. अब वर्क कर रहा है. So either you have to write down try and catch or you have to just declare that exception by throws exception. Okay, अब दोनों चीज को कंक्लूड करते हैं. दोनों चीज इन द सेंस, पहले मेरे पास फर्स्ट का कोई कंस्ट्रक्टर था. ओके, और यहाँ पे मैंने लिखा डिफॉल्ट ए. सेकंड का मेरे पास कोई सेकंड नाम का मेरे पास क्लास है विच इज द चाइल्ड क्लास ऑफ फर्स्ट क्लास. यहाँ मैंने लिखा हुआ है डिफॉल्ट बी. एंड राइट नाउ मैं सेकंड का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ. व्हाट इज द आउटपुट गाइस? बी. बी विल बी द आउटपुट, है ना? बहुत सही से प्रोग्राम रन होने वाला है. ना, ए एंड बी सर. फाइन. डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट. फाइन. सो जावा सी ex constructor java test, it works fine. But now guys, मेरा जो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ना, वो एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है. Now what will be the output? Default B. कंपाइल होगा? बिकॉज देखो, अब जब आप सेकेंड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, कंट्रोल जाएगा लाइन नंबर 10 में. अब लाइन नंबर 10 में जाते ही क्या होगा? यहाँ सुपर लिखा है. सुपर मतलब आप किसको एक्सेस कर रहे हो? फर्स्ट को. तो फर्स्ट तो एक्सेप्शन दे रहा है. अब एक्सेप्शन कौन सी लाइन में आ रही है? लाइन नंबर 11 में. 11 मतलब यहाँ जहाँ सुपर लिखा है. हमने भले ना लिखा हो बट वो बाय डिफॉल्ट आ जाएगा. मतलब एक्सेप्शन यहाँ पे आएगा. मैं अगर कमेंट भी करूं तो भी वो मुझे ऐसे एक्सेप्शन देगा. लेट आई कंपाइल दिस. देखो ना कहाँ पे लिखा है. ओ भाई, कुछ तो प्रॉब्लम. ओके, यहाँ पे थ्रोज, सॉरी कीवर्ड में इश्यू था. नाउ जस्ट चेक कहाँ पे एक्सेप्शन दे रहा है? लाइन नंबर 11 में. सो लाइन नंबर 11 मींस दिस वन. यहाँ पे एरर आ रही है. तो भाई कुछ तो प्रॉब्लम है. वी हैव सम इश्यूज. मतलब एक्चुअली ये भाई साहब ने पीछे थ्रोज लिख के खुद फ्री हो गए. अब हमारे पास यहाँ पे एक्सेप्शन. So what we have to do, either you have to just write down try and catch over here, but guys हम लोग यहाँ try catch नहीं लिख सकते. try catch के लिए हम लोग क्या करते हैं? हमको ऐसा लिखना पड़ता try and उसके अंदर super लिखना पड़ता and catch exception e, ऐसा कुछ लिखना पड़ता. But the rule is super must be the first statement. Super must be the first statement of child class constructor. तो ये टेक्निक अलाउड नहीं है. It just deny. Oh, why? Super call to super must be the first step. So this technique is not allowed. This technique is not allowed. You cannot write down this. That is not allowed actually. And what is the second option? What is the second option? इसको मैं comment कर देता हूँ because आपके knowledge में रहे. Not allowed because super must be first statement of child class constructor. So that technique is not allowed. So what I have to do? Yes, anyone? दूसरा टेक्निक क्या था? Can we do one thing? ये सेकंड भी ऐसा कर दे तो भाई ठीक है, मैं भी आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ, मैं भी हैंडल नहीं कर सकता, जस्ट जाने दो. सो सेकंड टेक्निक यही था, थ्रोस एक्सेप्शन. बिकॉज हमने यहाँ जो सुपर बाय डिफॉल्ट लिखा था ना, वो एक्सेप्शन थ्रो कर रहा था. सो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैंने ऐसा लिख दिया. नाउ अब ये कंस्ट्रक्टर, अब ये एक्सेप्शन कहाँ जाएगा? अब ये एक्सेप्शन लाइन नंबर 31 में. मतलब सेकंड को जो कॉल कर रहा है, दैट गाय इज रिस्पांसिबल टू हैंडल. सो आइदर आप मेन के अंदर ट्राई कैच लिख सकते हो, अदरवाइज यू कैन जस्ट राइट डाउन थ्रोस एक्सेप्शन ओवर हियर. दैट्स योर चॉइस. नाउ लेट मी कंपाइल. सो नाउ इट्स वर्क. सो डिफॉल्ट ए, डिफॉल्ट बी. सो ये सब कहानियां क्यों करी हमने? बिकॉज मेरे पास एक क्लास है. इस क्लास को मैं इनहेरिट करने वाला हूं. ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं. इस क्लास को हम लोग इनहेरिट कर चुके हैं. ओके, सो ये क्लास कौन से क्लास का सुपर क्लास है? दैट इज अ सुपर क्लास ऑफ माय ऐड क्लास. सो नाउ मान लो मेरे पास ऐड क्लास में कंस्ट्रक्टर है. हम लोग को ऐड क्लास में कंस्ट्रक्टर पता हो तो मिल गया था. हमारे पास ऐड क्लास में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का पहला स्टेटमेंट क्या होता है? सुपर. सुपर मतलब कहाँ जाने वाला था? सुपर मतलब यूनिकास्ट रिमोट ऑब्जेक्ट के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करता. ठीक है, सो जस्ट चेक. सो अपने पास java p java.rmi.
server.unicast remote object, sorry, not the exception, that is object. So ये जो अपना unicast remote object नाम का क्लास है, unicast remote object नाम का क्लास है, उसके अंदर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चेक करिए ना. So this is the default constructor. और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है? It just throws the exception. It just throws the exception. हैंडल करना पड़ेगा भाई, ठीक है, क्योंकि अब जब यहाँ सुपर लिखेंगे और हम लोग इवन ना भी लिखें, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सुपर होता ही है, वो एक्सेप्शन देगा. एक्सेप्शन कहाँ पे आएगा? अपने चाइल्ड क्लास, इन शॉर्ट एड क्लास के कंस्ट्रक्टर में. सो लेट आई जस्ट कंपाइल अवर एड क्लास. सो जस्ट थ्रो एन एक्सेप्शन, एड क्लास नॉट. So just check, it just throw an exception. What is the exception? Sir, there is an unreported exception in your default constructor. But भाई मैंने तो default constructor बनाया नहीं. So ये default constructor कौन बनाने वाला है? Java. Java उसमें एज ए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या करेगा? सुपर को कॉल करेगा. सुपर मतलब कौन? यूनिकास्ट रिमोट ऑब्जेक्ट का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. अब वो भाई साहब एक्सेप्शन थ्रो कर रहे हैं जो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है. देन व्हाट इज द सॉल्यूशन? हमको क्या करना पड़ेगा? हमको खुद को अपना एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना पड़ेगा और उस एक्सेप्शन को हैंडल करना पड़ेगा. उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो ट्राई कैच जो यहाँ एप्लीकेबल नहीं है, ये तो सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर एक्सेप्शन थ्रो, सो वी कैन नॉट राइट डाउन ट्राई एंड कैच. सो हमारे पास एक ही ऑप्शन बच रहा है, यहाँ से आप डिक्लेयर करें. दैट्स इट. सो नाउ लेट मी कंपाइल. सो लेट्स कंपाइल फन. ओके, नाउ कंपाइलेशन वाज सक्सेसफुल. सो इज दिस क्लियर व्हाई वी हैव टू डिफाइन दिस? व्हाई वी हैव टू डिफाइन द कंस्ट्रक्टर गाइस? हम लोग यहाँ हेल्प में लिख देते हैं, एंड वी हैव टू डिफाइन ए कंस्ट्रक्टर. डिफाइन कंस्ट्रक्टर विथ डिक्लेरेशन ऑफ रिमोट एक्सेप्शन. आप सिर्फ एक्सेप्शन भी लिख सकते हो, दैट्स नॉट अ बिग थिंग. व्हाई वी हैव टू डू दिस? रीजन इज, व्हाट इज द रीजन? यस एनीवन? Because unicast remote object is a superclass of head class, and uniclass remote object having a constructor with thrown exception that must be handled by child class constructor, that must be handled in child class. Child class कौन है अभी? add class. Okay, otherwise has to throw from child class constructor. Okay, so that first option is not possible. Why first option is not possible? Because super we cannot write. Okay, so first option is not possible. So that is not possible. So हम लोग second option के साथ चल रहे हैं. So कंपलसरी हम लोग को यहाँ पे ऐड क्लास करके कंस्ट्रक्टर बनाना है, और जहाँ पे ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा. पहले अंदर कुछ ना लिखो, but that is mandatory. So that is mandatory. So is this fine? Yes sir. Okay guys, किसी को कोई डाउट? So now I hope that is clear. Now the next step is, the second step is over. या मुझे पता है कि अब आपको लग रहा होगा कि सर ये डिटेल में नहीं समझाया हो तो ही अच्छा था, हम लोग रट्टा मार लेते हैं. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज जस्ट लॉन्च द रजिस्ट्री. सो रजिस्ट्री लॉन्च करने के लिए गाइस आपको सिंपल सीएमडी ओपन करें, राइट डाउन RMI रजिस्ट्री, just write down RMI registry and port number. That's the registry is open, registry is launched. तो थर्ड स्टेप इज pretty simple. हमको थर्ड स्टेप के लिए क्या काम काज करना है? लॉन्च द रजिस्ट्री के लिए या स्टार्ट द रजिस्ट्री के लिए क्या काम काज करना है? वी हैव टू सिंपली राइट डाउन, जस्ट ओपन कमांड प्रॉम्प्ट एंड जस्ट राइट डाउन RMI registry and whatever the port number, जो पोर्ट नंबर पे आप लॉन्च करना चाहते हैं. ओके, नाउ व्हाट इज द फोर्थ स्टेप? define server. So define server in the sense what, just define a class and उसके अंदर public static void में. अब मेरे पास दो प्रोग्राम, एक सर्वर होगा और एक क्लाइंट होगा. ओके, तो मैं पहले सर्वर डिफाइन कर देता हूँ. तो मैंने पहले सर्वर डिफाइन किया.
Now what we have to do in server? Server में हम लोग को क्या काम काज करना है? Like defined like object of the class. तो हमने कौन सा क्लास बनाया था? हमने एक क्लास बनाया that is add class. उसका object बनाए and write down that one in a registry. And write down that one in a registry. So यहाँ पे पहला स्टेप क्या होगा? Define server, मतलब हमने क्लास सर्वर बनाया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लिखा. Now create an object of देखो अब मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा था कि हम लोग को ऑब्जेक्ट एक्चुअली बनाना किसका है? हमको ऑब्जेक्ट बनाना है एक्चुअली हमारे क्लास का, बट यहाँ क्लास की जगह हम लोग लिखेंगे इंटरफेस. बिकॉज सामने लाइक जब क्लाइंट की बात करें तो क्लाइंट के पास वहां पे इंटरफेस है, वहां पे क्लास नहीं है. ओके, वहां पे क्लास नहीं है, तो हमारे पास इंटरफेस है क्लाइंट के पास. तो यहाँ पे हम लोग क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिमोट इंटरफेस, दैट इज द फर्स्ट स्टेप. सो रिमोट इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या करोगे? So that is my class. हम लोग ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा, my interface ऐड इंटरफेस sorry, add interface object. But guys, interface का object बन नहीं सकता. But we have one facility. हम लोग child class का memory allocation दे सकते हैं. Super class को child class का memory allocation दे सकते हैं. तो हमने क्या लिखा? Add interface object is equals to new add class. बट नाउ यू नो गाइस कि जब हम ये कंस्ट्रक्टर का यूज करेंगे तो वो कंस्ट्रक्टर एक्चुअली एक्सेप्शन थ्रो करता है. सो आइदर तो आपको इसको ट्राई कैच में लिखना पड़ेगा, अदरवाइज यू कैन जस्ट राइट डाउन थ्रोज रिमोट एक्सेप्शन. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज ऑब्जेक्ट बन गया. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट टास्क? सो क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिमोट इंटरफेस. द नेक्स्ट थिंग इज राइट डाउन दिस ऑब्जेक्ट इनटू रजिस्ट्री. into registry. For that we have actually naming class. तो अगर आप ऑब्जेक्ट को रजिस्ट्री में लिखना चाहते हो, then guys for that we have a naming class. You have to simply write down naming dot bind. कुछ भी की लिख दीजिए. तो भाई ऑब्जेक्ट का नाम सूरत है and object, that's it. सूरत ऑब्जेक्ट. So in future जब भी आप उस ऑब्जेक्ट को fetch करने की ट्राई करोगे, आपको उसको सूरत देना है. It will return the object. आप सिर्फ उसको सूरत पास करिए, ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा. बट ये सूरत मुझे लिखना कहाँ पे? सर ये रजिस्ट्री में. रजिस्ट्री कहाँ पे ओपन है? रजिस्ट्री इज ओपन ऑन अ पोर्ट नंबर 1000. सो गाइस फॉर दैट यू हैव टू राइट डाउन ऑन अ सेम मशीन 1000 नंबर के पोर्ट पे लिखना है. ऑन अ मतलब मेरे पास सर्वर और क्लाइंट एक ही मशीन पे होंगे और रजिस्ट्री भी इसी मशीन पे है. सो लोकल होस्ट पे 1000, बट व्हाट इज द प्रोटोकॉल दैट्स द प्रोटोकॉल. सो लेट आई कॉपी दिस एंड लेट आई पेस्ट इट ओवर हियर. So ये कुछ कामकाज मुझे करने हैं. And to support this naming, to support this naming, you have to import a package java.rmi.name. Okay, and one more, that is a remote exception, because this class will throw an exception. Sorry, this function will throw an exception. That's it. So that is server.java. Now what we have to do in a client side? So that's the server. Now in a client side, just a moment. So in a client side, what we have to do, define client. Client पे सिंपल सा काम काज करना है, यहाँ तक का कॉपी पेस्ट. जस्ट अ मोमेंट, अंदर का चीज मैं चेंज करूंगा. तो क्लाइंट बना दिया. Now we have to just create an object of interface. बट ना ये ऑब्जेक्ट मुझे अभी कहीं से चाहिए. कहां से चाहिए गाइस ये ऑब्जेक्ट? मुझे रजिस्ट्री से. तो रजिस्ट्री में से डेटा लेने के लिए हम लिखेंगे लुकअप. ओके, एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट. ओके, तो यहां से यहां तक का मुझे लुकअप एंड सेम लोकेशन में उसको पास कर. सो इट विल रिटर्न एक्चुअली इंटरफेस ऑब्जेक्ट. नाउ कॉल योर फंक्शन. व्हाट इज द फंक्शन नेम? फंक्शन नेम इज एक्चुअली ऐड एंड पास टू वैल्यूज. You will get the answer. ये फंक्शन कहाँ पे एग्जीक्यूट होगा? This function will execute on like server, और यहाँ पे आपको आंसर मिलने वाला है. Okay, so यहाँ पे मुझे कामकाज मेरा पहला स्टेप होगा just get the object from the server, object from registry, and the second thing is like call remote method. Okay, call the remote method. So let I just copy this code and ये हम क्लाइंट के अंदर पुट कर देते हैं.
Fine. So that is line.java. Okay, now that's it. Now let's do this. So fine. So हमारा एक कमांड प्रॉम्प्ट रजिस्ट्री के लिए रिजर्व्ड है, ठीक है. नाउ सेकंड प्रॉम्प्ट में मैं यहाँ लिख देता हूँ java c server.java. So now it makes an issue. What is the exception? Sir, already bound exception. Already bound exception आ रहा है. कौन सी नंबर की लाइन? 8th नंबर की लाइन. So guys, सर्वर में मुझे 1 नंबर मतलब यहाँ पे एरर आ रहा है. ये भी कुछ एक्सेप्शन दे रहा है, उसको भी डिक्लेयर कर देते हैं. Already bound exception. You can declare that also. Even though आप 2 एक्सेप्शन की जगह सिर्फ 1 एक्सेप्शन भी लिख सकते हो. That's your choice. ठीक है. अब मुझे ये ऑलरेडी बाउंड एक्सेप्शन कुछ बग दे रहा है. सर ये उसको लाइक पोजीशन ये इसको एक्चुअली एक्सेप्शन मिल ही नहीं रहा. सो फॉर दैट मुझे यहाँ पे एक और लिखना पड़ेगा. RMI में ऑलरेडी बाउंड एक्सेप्शन java डॉट में इंपोर्ट करना पड़ेगा. यू कैन जस्ट गाइड डू वन थिंग कि लाइक वहां पे एक्चुअली आप स्टार लिख सकते हो. अब मुझे क्या बोल रहा है सर, मेल फॉर्मेट URL एक्सेप्शन. हो सकता है कि ये भी एक एक्सेप्शन है ना. आई एम बोर्ड, मैं इतना सारा नहीं लिखने वाला. सो व्हाट आई एम डूइंग, मैं सीधा सुपर क्लास लिख देता हूं एक्सेप्शन. दैट्स इट. ठीक है. सो नाउ लेट मी कंपाइल. दैट्स कंपाइल सक्सेसफुली. अरे नाउ रजिस्ट्री ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूं. पहले रजिस्ट्री स्टार्ट करना है, देन सर्वर को रन करना है, बिकॉज़ वो रजिस्ट्री के अंदर कुछ लिखेगा. सो नाउ लेट मी रन द सर्वर. So now it just generate a bug. What is the bug? Oh, what is the add interface? मैं add interface को नहीं जानता, मैं unmasked exception को नहीं जानता. Like there are lots of things. मैं इस सब को नहीं जानता. So what we can do for that? Okay, that's a routine problem of this machine. But properly setted नहीं है. Still it's generate the same problem. 1 minute. अभी एड इंटरफेस देखना पड़ेगा. ठीक है, सेम नाम है. रिपोर्ट में તમે फर्क नहीं पड़ता. કેમ नहीं पड़े? नहीं पड़ता ना, क्योंकि सब कुछ एक ही क्लास, एक ही लाइक फोल्डर के अंदर है. सब कुछ एक ही फोल्डर में तो चल जाता है. फाइन. ओके, मैं एक बार रजिस्ट्री वगैरह सबको क्लोज करके क्लीन कर देते हैं पहले सब कुछ. ओके, एक बार क्लाइंट में भी चेंजेस कर ही देते हैं. सो यहाँ पे एक्सेप्शन रख देते हैं. सो दैट विल बी बेटर. एंड एक एरर यहाँ पे आनी थी, बिकॉज नेमिंग डॉट लुकअप में हम लोग को लाइक जो रिटर्न मिलने वाला है उसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा, बिकॉज उसका रिटर्न टाइप ऑब्जेक्ट है, बट मुझे उसको लाइक ऐड इंटरफेस में स्टोर करना है. सो वी हैव टू जस्ट टाइप कास्ट दैट इज द फाइनल थिंग. ये एक ही एरर जनरेट होनी थी. सो आई होप प्रोग्राम तो आप लोग को समझ में आया. नाउ जावा सी star.java, मतलब मैं सबको ही कंपाइल कर रहा हूँ. फाइन. डुप्लीकेट क्लास ऑफ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. ओके फाइन. सो वी कैन डू वन थिंग. हमारे क्लास जितने भी काम के हैं उनको रखते हैं. सो क्लाइंट इज यूजफुल, सर्वर इज नॉट यूजफुल. बाकी सबको मैंने अंदर रख दिया. ओके, सो वी हैव ओनली 4 क्लासेस. सो देयर इज नो एरर. नाउ सर्वर को रन करते हैं. नाउ इट मस्ट जनरेट एन एरर, और वो एरर एक्चुअली सर्वर ही नहीं मिलता. सो मैं क्लास पाथ सेट, दैट इज उसको एक्चुअली ये खुद का फोल्डर नहीं मिलता. समझ लो, दैट इज जावा बग. सो नाउ सर्वर इज स्टार्टेड गाइस. सर्वर इज स्टार्टेड, बट व्हाट इज द प्रॉब्लम? सर्वर स्टार्ट होने से पहले मैंने क्या बताया था, मुझे क्या चीज रन करनी थी? रजिस्ट्री. तो मैंने रजिस्ट्री स्टार्ट नहीं की. दैट्स द बग. सो नाउ लेट आई जस्ट स्टार्ट वन मोर कमांड प्रॉम्प्ट. एंड यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं स्टार्ट, सॉरी, RMI रजिस्ट्री एंड पोर्ट नंबर 1000. सो रजिस्ट्री स्टार्टेड. नाउ लेट वी रन द सर्वर. वन सेकंड, एड इंटरफेस का इश्यू आ रहा है गाइस. ये उसके पास है, ये मशीन के पास, बट मशीन का इश्यू है ये. ओके फाइन. आप अपने घर पे कंप्यूटर में रन करोगे तो दैट विल रन. ओके, दूसरा आपको एक और कमांड प्रॉम्प्ट आपको स्टार्ट करना है, और उस कमांड प्रॉम्प्ट पे आपको सिर्फ और सिर्फ लाइक क्लाइंट को एग्जीक्यूट करना है. कमांड प्रॉम्प्ट आपको स्टार्ट करना है, एंड यू हैव टू जस्ट राइट डाउन. 1 मिनट, मैं एक और ट्राई कर लेता हूँ. सेट क्लास में उसको डेटा दे रहा हूँ. चलो, इक्वल्स टू डॉट्स एंड अरे सेट क्लास पाथ. हो सकता है कि इसको भी पैकेज की जरूरत पड़ रही हो. RMI रजिस्ट्री. नाउ लेट मी रन द सर्वर. So fine, it's working right. Okay, रजिस्ट्री में भी पाथ का प्रॉब्लम आ रहा था. So right
रजिस्ट्री परफेक्टली वर्क कर रही है एंड सर्वर भी सही से वर्क कर रहा है. हियर इट इज. नाउ दिस इज माय क्लाइंट. तो सबसे पहले मैं क्लास पाथ सेट कर देता हूँ. सॉरी set class path is equals to and let I copy this. So इस फोल्डर का लोकेशन. फाइन. मेरा सर्वर बंद हो गया. नहीं, एक्सपोर्ट. नाउ यहाँ पे रन कर देते हैं क्लाइंट. सो हियर वी हैव 30. सिर्फ 30 लाने के लिए हमने ये भेजा वाली की है ना. सो आई होप दैट इज क्लियर. ओके अब एक क्वेश्चन आप लोग को ऐसा पूछा जाता है कि भाई मुझे एक ऐसा आरएमआई का प्रोग्राम बना के दो जहां पे मैं सर्वर को स्ट्रिंग पास करूं एंड वो उसका अपर केस कन्वर्ट करके मुझे दे. सो लेट मी जस्ट डू दैट. इस चीज का मुझे एक इंटरफेस बनाना है. मैं ऑलमोस्ट कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ. सो इंटरफेस के लिए मैं यहाँ पे लाइक इंटरफेस ले लेता हूँ एंड इसमें रख देते हैं माई इंटरफेस. एंड उसका कामकाज होगा कि हम लोग एक स्ट्रिंग पास करेंगे. So let I just pass a string and वो उसका upper case convert करके देगा. So function का नाम मैं ले लेता हूँ convert. So that's my interface and इसमें हम लोग अलग सा फोल्डर बना देते हैं RMI progs और उसमें लिख देते हैं my interface dot java. So first thing is done. Second मुझे क्या चाहिए? मुझे उसका implemented class चाहिए. So let I copy all this thing. और implemented class के अंदर मुझे फंक्शन का नाम था मेरा लाइक लेट आई कॉपी दैट फ्रॉम दिस वन. ओके फंक्शन का नाम मुझे जो भी यहाँ पे था मुझे यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है. अब ये रिटर्न क्या करना चाहिए? ये अपर केस में कन्वर्ट करके करना चाहिए. तो स्ट्रिंग के पास कुछ फंक्शनलिटी है. एड को मैंने रिटर्न कर दिया. व्हाट अबाउट द थर्ड वन? ये कहाँ पे हमने रखा? ठीक है दैट्स इट. व्हाट अबाउट द थर्ड वन? प्लीज डिफाइन द सर्वर. सो सर्वर का जो भी कोड है वो एज इट इज आएगा. सर्वर का जो भी कोड है वो एज इट इज. अब आपके इंटरफेस के और क्लास के नाम जो भी चेंज होने हैं वो चेंज हो जाएंगे. सो यहाँ पे माई क्लास एंड हियर आई हैव माई इंटरफेस. बाकी जावा सर्वर डॉट जावा दैट इज सेम वन. नेक्स्ट क्लाइंट. तो क्लाइंट पे भी सब कुछ सेम होगा. कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है. सिर्फ आपके नाम चेंज हो जाएंगे यहाँ से. सो यहाँ पे yes. अब डेटा मुझे क्या पास करना था? सो आई वांट टू पास वेलकम क्योंकि आर्गुमेंट में स्ट्रिंग था और वो मुझे स्ट्रिंग रिटर्न करेगा और फंक्शन का नाम था कन्वर्ट. दैट्स दैट. सो दैट इज client.java. कहाँ पे सेव कर रहे थे हम इसको? client.java. ओके फाइन. मैं सबके सब कमांड प्रॉम्प्ट बंद कर देता हूँ. लेट मी जस्ट स्टार्ट द कमांड प्रॉम्प्ट फ्रॉम हियर. ओके सो स्पेसिफिक DSA RMI Java RMI एंड यहाँ से एक फोल्डर स्टार्ट कर देते हैं. फोल्डर लॉन्च कर लेते हैं क्योंकि वो पाथ सेट करना पड़ रहा है मेरे मशीन में. तो यहाँ से ये कॉपी कर देते हैं. ओके एंड सबसे पहले ही मैं लिख देता हूँ जावा सी start.java. तो कोई एरर होगी तो यहाँ मिल जाएगी. जैसे कि यहाँ एड इंटरफेस नाम चेंज करना भूल गया. कौन सी लाइन में कहाँ पे एरर है? दैट इज इनसाइड एक्चुअली एड इंटरफेस एंड लाइन नंबर 4. एड क्लास में लाइन नंबर 4. सो एड क्लास में ये क्या एरर आई? 1 मिनट है गाइस. ओके यहाँ पे आएगा माई इंटरफेस एंड हियर इट मस्ट बी माई क्लास. हमने एड क्लास की जगह माई क्लास कर दिया था. सो नाउ लेट मी वंस अगेन कंपाइल दिस. सो दैट्स इट. नाउ इट वर्क्स फाइन. ओके अब मैं क्लास पाथ सेट कर देता हूँ. ये आपके कंप्यूटर में शायद जरूरत ना भी पड़े. सेम फोल्डर का लोकेशन मैंने सेट किया. मैं रजिस्ट्री स्टार्ट कर रहा हूँ. मैं 1000 पोर्ट नंबर पे रजिस्ट्री स्टार्ट करूंगा बिकॉज मैं ऑलरेडी 1000 यूज कर चुका हूँ. ओके सो 1000 पोर्ट नंबर पे रजिस्ट्री स्टार्ट हो गई. नाउ लेट मी जस्ट स्टार्ट अ न्यू कमांड प्रॉम्प्ट. और यहाँ आके सबसे पहले मैं क्लास पाथ सेट करूंगा. देन आफ्टर मैं सर्वर को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ. ओपन वन मोर कमांड प्रॉम्प्ट एंड क्लास पाथ सेट कर दिया. एंड नाउ आई वांट टू रन अ क्लाइंट प्रोग्राम. सो हियर वी हैव वेलकम इन कैपिटल. इवन दो यू कैन डू वन थिंग, आप यहाँ से यूजर से डेटा फेच करके भी पास कर सकते हैं. एंड क्लाइंट एक से ज्यादा वर्क कराए. देखो सर्वर स्टिल बंद नहीं हुआ है. सर्वर स्टिल वर्किंग. सर्वर ये RMI रजिस्ट्री है एंड हियर आई हैव अ सर्वर. सर्वर इज स्टिल वर्किंग. सो अगर आपके पास 10 कंप्यूटर है, 15 कंप्यूटर है, सर्वर आपको रिप्लाई करता है. सो इज इट क्लियर गाइस? सो दैट इज मैंडेटरी. ये प्रोग्राम पूछा ही जाएगा और लॉजिक ऐसे फालतू वाले ही होते हैं. नॉट फालतू बट इतने इजी लॉजिक ही होते हैं.
जैसे अपर केस में कन्वर्ट करके दो, 2 नंबर में से मैक्सिमम फाइंड करके दो, मैंने एरे पास कर दिया उसमें से मैक्सिमम फाइंड करके दो, एरे पास किया उसको शॉर्टिंग करके दो। सो इट्स नॉट अ बिग डील, वो सब आप लोग सी प्लस प्लस से करते हुए आ रहे हैं।